Independence Day! Okay, on this occasion, I have got a special grills which is on famous personalities of India. A quiz on them. And all these personalities are related to like the field of art. So, movies, music, entertainment, literature and art of course. यहाँ की personalities हैं. बहुत easy नाम है, तुमने नाम सुने होंगे. एकदम देसी लोग, इंडिया जीके एंड ऑडियंस के लिए बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस स्टफ्ड हैं. सो मेक श्योर यू वॉच केयरफुली. First two questions also have options. So it's going to be easy for you. Are you ready? Yes. We are ready! Ready and steady and let's go! Okay, rock, paper, scissors कर लो. Oh! कर ले rock, paper, scissors. चल. Rock, paper, scissors! Oh! Sweat wins. Sweat. First question is for you. एकदम easy है. You will be able to deduce. Okay. There are options. Okay? Okay. Let's go. Identify this person. He was Indo-Persian Sufi singer, musician, poet and scholar. He was associated with royal courts of more than 7 kings in the 14th century. He is considered as the father of Qawwali, father of Urdu literature, voice of India, etc. History is what? So, option A is Mirza Ghalib, option B is Rumi, option C is Amir Khusro, option D is Bulle Shah. Oh my God, ये तो बहुत confusing options चारों ही हैं. ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं. सारे ही लग रहे हैं कि All of the above नहीं हो सकता. I'll go with I think History is... मैं A और C में confuse हो रही हूँ. Oof, swag, we don't have a lifeline. Can we do 50-50? पर तू कर पाएगी. और If you A और think C बचे about- हैं. If you think about each of them, I think maybe. यार दोनों ही देख बहुत popular musicians लग रहे हैं, मतलब हैं. मिर्जा गालिब. लॉक कर दिया जाए. Yes. Oh, swag, this is option C. Oh! Amir Khusro. This is. I should have said. Yeah, I don't think Mirza Ghalib was किसी के कोर्ट में वो. हाँ. ये तो वो associate हो जाता है ना कि मिर्जा गालिब With literature, with all of that. Yes, but it was Amir Khusro. And मैंने और पढ़ा तो मुझे पता चला कि I think people would know it better, but he has a lot of contribution in Hindustani classical music, ghazals, बहुत सारी उन्होंने राग लिखी हैं. Swat, you get a 0. Bad start. Okay, Mohit, next question is yours. Yes. Let's see if you can score a point. And here you go. He is recognized as one of the greatest painters of Indian art history. There was a time when every Indian household had a painting of God made by him. Why? Because unlike other artists of his time, he made affordable prints of his paintings, thus helping the masses buy art. His title was conferred as a personal title by the Viceroy and Governor General of India, Lord Curzon. क्या मतलब his title was conferred? There is a title. Oh, there's a title given to Yeah. this person. So option A, Nandalal Bose. Option B, Abindranath Tagore. Option C, M.F. Hussain. Option D, Raja Ravi Verma. ठीक है, तो मैंने A और B तो नाम ही नहीं सुने, तो इनको मैं आउट रखूँगा. चाहे सही जवाब हो तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ. मैं C और D मैंने नाम सुने हैं, M.F. हुसैन और राजा रवि वर्मा. अब जो मुझे लग रहा है ना कि अनलाइक अदर आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम ही मेड अफोर्डेबल प्रिंट्स, वो मुझे लगता है वो कभी M.F. हुसैन ने नहीं किया. हिज पेंटिंग्स वर ऑलवेज प्रीमियम लग्जरी, और आई थिंक थोड़ा वहाँ पे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी आर्ट गैलरीज या महंगी जगहों पे M.F. हुसैन की पेंटिंग दिखती हैं. बट राजा रवि वर्मा के बारे में मैंने अपनी हिंदी बुक में पढ़ा था जब मैं स्कूल में था, तो जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो मुझे लगता है अफोर्डेबल रहा होगा शायद ये. तो आई विल गो विद डी, राजा रवि वर्मा, विद माय ब्रोकन लॉजिक, बट दैट्स माय लॉजिक. व्हाट टू डू? Broken ही सही, but it was right. कैसे बोला कि मेरे हिंदी बुक में था तो अफोर्डेबल ही होगा. This was राजा रवि वर्मा and वो टाइटल जो उनको मिला था was राजा बाय. तो वो थोड़ा मैंने इसे डाला हुआ था कि मे बी somebody might be able to guess it. एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये पढ़ के कि उस समय आर्ट वॉज अ लग्जरी एंड गॉड्स आपके घर में होना वॉज ऑल्सो अ लग्जरी. लाइक बहुत सारा कास्टिज्म था कि आप मंदिर नहीं जा सकते, सर्टन टाइप ऑफ पीपल, बट ये डेमोक्रेटाइज इट ऑल. खुद ही की प्रिंटिंग प्रेस खोल दी, खुद ही अपना आर्ट इस तरह से उन्होंने बनाया. यू मस्ट हैव सीन कोई ये पेंटिंग एंड ये तो गॉड्स की. ये तो हमारे कैलेंडर्स के अंदर होती है. एग्जैक्टली. सो दीज आर लाइक दिस वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू मेक इस तरह के. ओके मोहित,
you get 10 points. Good start. Swat, you have a lot of chances. Yeah. So, audience question with the same options जो मोहित के पास थे. Audience के लिए दूसरा question है. इसकी ये एक इमेज है जो महात्मा गांधी की बड़ी पॉपुलर सा आर्ट वर्क है. एंड वन ऑफ दीज आर्टिस्ट आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस ने बनाया था ये आर्ट वर्क. इट इज़ कॉल्ड बापूजी. इट वॉज मेड ड्यूरिंग द डांडी मार्च मूवमेंट. विच आर्टिस्ट इट वॉज? नंदलाल बोस, अभिंद्रनाथ टैगोर, M.F. हुसैन, राजा रवि वर्मा. एंड या आई विल सी यू इन द कमेंट्स. Coming to the chill section. Oh. And because we are talking about famous personalities and artists, the chill section is art and artist. I will show you an art which is या तो कोई book या कोई movie poster and you just have to tell me the artist कि कौन author था या कौन director था. It will all be मूवी पोस्टर में क्या बोलना है? डायरेक्ट वो लिखा है वहाँ पे क्या बोलना है. You just have to clap and जो भी पहले बोल रहे. ठीक है? And here we go. रविंद्रनाथ टैगोर. Yes, Swat! 5 points. Good start, Swat. Okay. Next. Oh, quick audience question. Rabindranath Tagore was the first non-European to win which great prize it was. Anyway, back to you. Next question. Artist. पिकासो. अरे इंडियन पर्सनैलिटीज चल. अच्छा. पास कर दे. हाँ चल. M.F. हुसैन. Yeah. ओ यार ये तो मैंने देखा है. ये तो इंडियन आर्ट फेयर में देखा था हमने. Yes, you've seen this. This is very famous. This is M.F. Hussain. And Swat, you are at 10 points. Mohit, you are also at 10 points. क्या पिकासो बोला मैंने? गधा है क्या मोहित तू है? ऐसा बोला जरा. Okay, ready? हाँ. Next. R.K. नारायणन. Yes, Narayan. R.K. Narayan. हाँ R.K. नारायण. 5 points. Malgudi Days. And 1, 2, 3. किसी बहुत पथेर फेमस पंचाली. डायरेक्टर की. You all must have heard me talking about this director. This director. Yeah. पथेर पंचाली. एक डायरेक्टर वाले तो बहुत बात करता है तो ज़ोया अख्तर. नहीं. Swat, you wanna take a guess? It looks like an old movie है ना? Now I can't say anything because तूने guess ले लिया. I Swat? don't know. आज ही तो बात करी थी गुनीत होगा. No, guys, this is. तुम अब करोगे. This is सत्यजीत रे. Oh. Okay. 15 points, 10 points. Next chill is here. Music director. A.R. रहमान. You are right. 5 मैं points. म्यूजिक डायरेक्टर देखा ही नहीं था. Okay, this was A.R. Rahman. Next. ताली नहीं बजा. नहीं याद मुझे. राजा मौली. This is Rajamouli. 5 points. Okay, next one is not for you. It's for audience. Author of this book and hint is Vande Mataram because Independence Day. Hello, so sorry to interrupt, but I just want to tell you that on the occasion of Independence Day, there is just not this special video, but we're also launching the India GK ebook. It has 50 India related questions with a lot of additional fun facts and trivia. Half of them are short GK questions, half of them are longer grills level K questions with additional fun facts, of course. And it is beautifully priced at just wait. Which year did India get independence on? 1947. So is the ebook price 1947? No, it is just rupees 47. So we've kept it super beautiful and Easter eggish like that. So please do check it out. The link is in the pinned comments. And because it's an ebook, a digital book, so the instant you buy it, you'll get a link in your email to download it. You can read it on any device, anywhere, anytime. So please do check the link out because मैं सुबह 9 बजे इस तरह से तैयार हुई हूँ. ये books रखी है मैंने just to tell you this. So please do check it out. And now back to the grills. Okay, guys, back to grills. Mohit, you are at 25. Yeah. Swat, you are at 10. And now the turn is rock, paper, scissors. Oh, okay. Rock, paper, scissors. Okay, I Mohit. win. Now it's your turn, and there are no options. But तुम जानते हो. These are अच्छा. really easy names, okay? Let's go. Okay. Identify this person. Indian Urdu poet, author, screenwriter, lyricist, and film director. His birth name was Sampuran Singh Kalra.
His father was against him writing, so he took a pen name by which we know him today. Started his career with music director S.D. Burman. हमको मन की शक्ति देना, a prayer we all sang in school, was written by him. यार जो भी यार है, पर फिल्म डायरेक्टर ने मुझे गूगली दे दी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अपने स्टार्टिंग डेज में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हर बंदा, तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ शॉर्ट फिल्म स्मॉल छोटे कुछ ऐसा बनाया हो। संपूर्ण सिंह कालरा, बट देन उर्दू पोएट, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा नाम कोई ऐसा जो उर्दू जैसा साउंड, गुलजार। वो बोलते मैं जावेद अख्तर बोलने वाला था, मुझे लगा पर वो पेन नेम नहीं लग रहा मुझे जावेद अख्तर, तो फिर मैंने गुलजार बोल दिया। थोड़ा सा एज्ड भी है, तो एस डी बर्मन के साथ शायद काम किया हो सकता है, और वो पुरानी प्रेयर है, तो टाइम के साथ बस ये फिल्म डायरेक्टर ने मुझे थ्रो ऑफ कर दिया। पर मुझे लगता है मे बी कोई शॉर्ट फिल्म बनाई हो उन्होंने बहुत पहले। You are absolutely right. Yes. This is Gulzar. And तुमने गाई है स्कूल प्रेयर हमको? I think it's in every school. It was written by him. क्योंकि शायद गुड्डी मूवी का वो था गाना। एंड बाकी सारे डिडक्शंस वर ऑन पॉइंट। करियर में शुरू में ही उन्होंने कभी फिल्म ट्राई करी है बनाने, did not work very well. And I got to know मेघना गुलजार is a very great director, is his daughter. So audience question, any of the movies जो मेघना गुलजार ने डायरेक्ट करी हो, आप कमेंट्स बताओ. This is audience question. Okay, Mohit, 10 points. Good deduction. Wow. 35 under 35. I know you can do the next one. Let's see. Let's go. Identify this legend. Born in Indore, recorded about 50,000 songs in 14 languages, even composed music for a few Marathi films. Last recorded song was released in March 2019 called Saugandh Mujhe Is Mitti Ki. नाम मैं शायद से पहचान गई हूँ, पर नाम श्योर नहीं हूँ मैं. It will be something जिनका नाम मुझे पता हो अच्छे से. बस ओके. मुझे पार्शियलिटी की भूख क्यों आ रही है? ऐसा नहीं. I just try to support whoever is losing. Like, फिर ये कोई और भी हो सकता है. अभी वो नहीं करता है क्या काम जो भी है? अभी करना सपोर्ट दे, दोनों को ही कर सकता है. अब लिखा तो लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग. नहीं हो सकता है कि अभी आया नहीं है गाना, पर अभी काम कर रहे हैं, जिंदा है. हाँ, ही इज अलाइव ना. आई कांट से एनीथिंग क्योंकि तुम लोग ऐसा बोले जो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ. बट ओह इट्स शी. आई कांट से एनीथिंग. Is it? लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग की डेट लिखी है, अभी तुम सोच लो. ये गाना है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, वो वाला ऐसा कुछ गाना है? नहीं यार मुझे I don't मिट्टी की से केसरी लग रहा है, पर फिर वो केसरिया. वो सौगंध मेरी मिट्टी की है कि सिर्फ मेरी. आई डोंट थिंक नीचे तुम्हें मिलेगा कुछ. देयर आर हिंट्स. अरे यार, एक तो ये क्या है, पता होगा. कंफ्यूजन. टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, 50,000 इज अ लॉट. हाँ. मतलब क्योंकि लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग की डेट लिखी है, तो टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, अरिजीत सिंह फॉर एग्जांपल सो फार इज रिकॉर्डेड 600 सॉन्ग्स, इतना गा के भी 10 गुना ज्यादा. तो दिस इज अ लॉट, दिस अ बिग नंबर. इवन कंपोज्ड म्यूजिक से कंपोजर. रिकॉर्डेड मतलब ये सिंगर भी थे क्या? 14 लैंग्वेजेस में गाना गाया है. तो अभी तक क्या लग रहा था? मुझे लगा म्यूजिक कंपोज किए इतने सारे गानों के मैं लिए. तो कंपोजर में नहीं, जानती थी. इट इज रिटन इवन कंपोज्ड. अच्छा, इज अ सिंगर एंड आल्सो बस. कंपोजर. एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. लता मंगेशकर. ओह गॉड, तू कहाँ थी और कहाँ से आई? मैं सोच रही थी तेरी मिट्टी वाला गाना है Oh, ये. that मैं वो one, जानती हाँ. हूँ. मुद्दसर क्या नाम है उसका, कुछ एम से. हाँ. तो फिर बट इतने सारे सॉन्ग्स नहीं किए उसने. फिर लेजेंड. ओके वाओ. सो लेजेंड के नाम से एक ही नाम आता है. एंड आई गॉट टू नो दैट शी वॉज अ म्यूजिक कंपोजर कुछ 2-3 मराठी फिल्म्स के लिए. और क्योंकि वो तो रेडी हो गई एकदम करने के लिए. हाँ, वो डायरेक्टर बता रहे थे कि कोई कंपोजर नहीं है इसके लिए. उनका हाँ मैं कर दूंगी.
तो डायरेक्टर ने बोला कि मे बी आपकी इमेज को थोड़ा वो हो सकता है, तो आप कुछ दूसरे नाम से कर लो. तो इफ़ यू टाइप ऑन गूगल आनंद गहन म्यूजिक कंपोजर, द रिजल्ट विल बी लता मंगेशकर, क्योंकि उन्होंने ये पेन नेम ले लिया था उसके लिए. वेरी नाइस. But yeah, it was Lata Mangeshkar. Swat. 10 points. Yeah. Yay. 20 and 35. अब बारी है 40 under 40 होने की. And now comes the chill time, जहाँ points की बरसात हो सकती है. ताली Okay. मारने की बारी शुरू. Okay, audience भी ready हो सकती है. They are playing with us. तुम Okay. ताली नहीं मारनी है. Oh. तुम्हारे पास 2 पेज हैं. इसमें तुम A B C D E ऐसे लिख लो बस. Oh. Audience, एक we are के playing with नीचे? us. Yeah. Just write एक के नीचे A B C. E. Okay. That's it. Yes. What we are going to play is Alpha Beta. no. Oh. Match the following. Okay. There are some artists की photos Okay. जो A B C D के नाम पे हैं, और उन्हीं के नीचे कुछ प्रोफेशंस की फोटो है, जैसे सिंगर, राइटर, ऐसा, जो 1 2 3 4 के नाम से. तो मैं बस A के अगेंस्ट लिखना है कि ये फोटो A1. लता मंगेशकर सिंगर 3 नंबर की, तो 3 लिख. ठीक है. और जिसने पहले कर दिया उसके वो पॉइंट. हाँ, वो पहले बता देगा ताली बजा के कि हाँ. वो और कितने पॉइंट्स मिलेंगे? you'll get 10 points. और कोई गलत हुआ तो 0. हाँ, 0. मैच है भाई, गलत तो मतलब 2 गलत होंगे, एक गलत हो भी नहीं सकता. हाँ. चलो ठीक है. ऑडियंस, यू रेडी? यू गाइज रेडी? Hmm. ओके, 1 2 3 4 लिख देना. क्लैप एंड डन, एंड हियर यू गो. Maybe I should record them. डन. So fast. वो मोहित, वेरी क्या किया मैंने? गलत किया. गलत कर दिया मैंने तो. लास्ट वाले गलत किया मैंने, इधर से उधर कर दिया. ओह चलो, आई एम रॉन्ग. तूने फर्स्ट भी तो गलत किया है. मैं कर सकती हूँ क्या? हाँ, कर सकती चल है. कर ले, चल जल्दी से. I'll give you 5 points back. ओह शिट, मैंने सब कुछ सही करके गलत कैसे कर दिया? रुको, ये सही, ये भी सही, ये भी सही. ओह अच्छा अच्छा, इस पे ये करना था. Done. वाओ. A is a choreographer. यस Yes. B is author. Yes. यस C is producer. Yes. D Yes. is singer. E is musician. यस. ओह, मैं म्यूजिशियन सिंगर में कंफ्यूज हो गया. मैंने यहाँ पे म्यूजिशियन डाल दिया. हाँ. और तूने A में भी तो कर दिया. हाँ, तूने सरोज खान को सिंगर कर दिया. musician नहीं, बना वही तो दिया. कुछ गड़बड़ कर दी Singer मैंने. बना दिया. मैंने बोला अच्छा यही बचे हैं, तो मैंने ऐसे कुछ कर, सारी गड़बड़ यहाँ से मैंने. इसलिए जल्दी जल्दी नहीं, ध्यान से करो. एंड कौन कौन है ये भी बता दो. चलो. सरोज खान, मुंशी प्रेमचंद, गुनीत मोंगा, किशोर कुमार, रवि शंकर. ये जो लास्ट में बच गए थे वो. तेरे को टू singer- टाइप ऑफ पीपल. जिसने बोला ABC लिखना है तो मैंने एकदम पास में लिखा है. हाँ, मोहित ने बड़ा लिखा है. मैं अलग यूनिवर्स. But Swat, you're right. Now I'm a little confused because I thought कि 10 या nothing होगा, पर I think I can give you 5 points. 10 इसलिए नहीं क्योंकि हम उसका देख के डिस्कस करने लगे थे कि वो ये गलत है, वो गलत है. नहीं मैं नहीं नहीं पहले लिख नहीं चुकी थी. A नहीं मैंने नहीं 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 लिखा ऐसे है. नहीं नहीं. आई थिंक शी डिजर्व फुल 10. मैंने गलती की, मैंने पहले बोला तो मेरा मिस्टेक है. Opponent बोल हाँ. रहा है तो 10 points. हाँ. Swat, 10 points and you are at 30 now. हाँ. And Mohit, you are at 35. 5 की लीड है. अरे 40 अंडर 40 कब आएगा? Okay, और अब ग्रिल्स राउंड, द लास्ट ग्रिल्स राउंड. एंड बिफोर दैट, एंड अब जो आएगा वो थोड़े प्रेजेंट डे के लोग होंगे. ठीक अच्छा, है, अभी ठीक तक है. पुराने लोग थे. थोड़ी क्रोनोलॉजी हम आगे बढ़ रहे हैं. एंड दिस वाज इंस्पायर्ड बाय अ क्विज दैट कुमार वरुण प्लेड विद अस. अगेन लेजेंडरी क्विज मास्टर. एंड इफ यू नॉट वॉच इट, यू कैन वॉच इट ऑन हिज चैनल. हम यहाँ पे कहीं लिंक भी डाल देंगे. बट या, लेट्स गो गाइज. रेडी? Yes. रॉक पेपर सीजर कर लो. चलो. फिर से रॉक पेपर सीजर्स. ओह वो स्वैट, योर टर्न. Okay. Identify this person. Indian filmmaker known for his works in Hindi films. Trained as an editor, like you, still edits all the films he directs. He had many friends in Nagpur's medical college and hence spent much time in theatre at the college. That led to his first directorial.
makes movies that are both commercially and critically, like critic wise also very successful. Who is this person? Surprisingly editor का question editor को ही आ गया. That was Sweat. तू डायरेक्ट भी करता है, तू एडिट भी करता तो है. हिंदी फिल्म्स भी देखता है, कमर्शियली और क्रिटिक वाइज सक्सेसफुल मूवीज देखता है. या Friends in Nagpur's medical college and hence spent much time in theatre at the college. That to his first director. तेरे से लग रहा है तूने गेस कर चुका है. हम्म. Oh. I don't know about editing part though. I don't know कि वो editor है कि It's okay, we might not know that. मतलब if Swad answers, then she's at 40 and you will have pressure to answer the next Oh, one. no. वो तो last भी है ना. Yes. Oh. Pressure. Ah. How come you are so confident about this? Because after watching a movie, I read trivia on IMDb. Swad knows this, I'm sure. पर इसको पता होगा, अगर इसने गेस नहीं कर आंसर बताएंगे ना तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे एक साथ ही. Sweat सोच. You've seen, I think, most of Most his of his movies. movies. जितने लोग देख रहे हैं आपने शायद एक ना एक मूवी तो देखी होगी. I'm sure. Oh यार. First movie का भी hint है in the third hint. Is it Raju Hirani? Yeah! Yes. Oh, Swat! What were you thinking? Swat, how did you come here? Oh, जब तूने बोला कि लास्ट इसमें है तो मैं कहा मेडिकल कॉलेज से फिर मुन्ना हाँ. भाई. आई डिडंट नो कि फर्स्ट मूवी उसकी मुन्ना हाँ. भाई. Yes. Oh. As a director. Wow. Yes. और मूवी के एंड में लिखा होता है डायरेक्टेड एंड And एडिटेड edited बाय by- राजकुमार हिरानी. Yeah. So now here is a very inspiring story. He used to be in theatres. तो उनके पापा ने किसी एक्टिंग स्कूल में उनकी फोटोज भी भेज दी कि इधर जा. He went there and 3 दिन में वापस भी आ गए कि मुझे नहीं जम रहा बॉम्बे, आई डोंट लाइक इट. एंड देन ही थॉट ऑफ अप्लाइंग एक और कॉलेज में जहाँ पे एक्टिंग तो अब स्लॉट बंद. तो ही थॉट ओके एज डायरेक्टर आई अप्लाई, बट ही हैड रियली लेस चांसेस बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे. तो सोचा छोड़ो एडिटिंग में ही अप्लाई कर देता. एंड देन ही लर्न एडिटिंग फ्रॉम देयर. ही स्टार्टेड एज एन एडिटर विद विनोद चोपड़ा की मिशन कश्मीर वगैरह ही इज एडिटेड. एंड देन आई एम ह्यूज फैन. वाओ. Like I Wow. love his movies. I think उन्होंने 3 Idiots बना के अपनी लाइफ का बेस्ट वर्क कर चुका है. हिरानी जी तो हीरा है. नहीं? But Swat, good track. You are at 40 now. Yes, Sweat 40 under 40. And you have put pressure on Mohit to answer this one correctly. नहीं तो वो हार तो जाएगा. डिफिकल्ट है इजी है? हाँ. Oh, I love that question. Oh my god. तो आंसर दे, हिंट देता हूँ. I love राजकुमारी रानी का question also. हाँ. क्या पता हमारे वीडियो राजकुमारी रानी सर देख रहे हो. Yeah. Sir, if you're watching, हाँ. oof, big fan. We love your work. इस वीडियो के लास्ट में लिख देंगे डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय राजकुमार हिरानी जी. Anyway, Swat, 40 Mohit. Last question. या I really hope इसको ना आए. अगर देख सही स्वेट कैसे होप कर रही है ना. मैं तेरे लिए रूट कर रहा हूँ चल, पूरे चल. टाइम पे और तू ऐसे होप करती है इसको ना आए. मजा आता है ना फिर ऐसे. पर और अच्छा तो मैं दिखता मजे- है एक क्या कॉम्पिटिटिव होना इज ओके. अच्छा हाँ. ठीक है. यू ठीक है, टू अलग ही वीडियो में एज आई कोई मेंशन. बात नहीं गाइस. आई थॉट इट हेल्प्स तो टू बी दोनों ही नाइस. एक दूसरे को रूट करेंगे कि तू जीत तो जीतेगा कौन. जो अच्छा होगा. मैं. anyway. Anyway, ये इनकी लड़ाई आप तो इग्नोर ही करो. Ignore ही करो. There is a question for you guys because I know इनको पता होगा आंसर. Okay. This is the साहित्य अकेडमी का लोगो. साहित्य अकादमी का लोगो designed by a multi-talented, legendary Indian artist and who also won, and please ignore my joke, but who also won the Academy Award. अकेडमी सॉरी बैड जोक बट किसी लेजेंडरी इन्होंने डिजाइन करा. किसने डिजाइन करा ये लोगो आप कमेंट्स में बताओ. एंड मोहित Last question. उफ आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इफ यू कैन सॉल्व इट और नॉट. हाँ. लेट्स गो. हाँ. His birth name is Shivaji Rao Gaikwad, but we know him as X. Okay. Despite being a mega star of Y movies, he's not Y. His mother tongue is Marathi.
Before going to film school, X used to work as a bus conductor in the Bangalore Transport Service. He made his Hindi film debut with Andha Kanun, a 1983 movie. ये मैंने देखी है पिक्चर अंधा कानून. Who ये is अंधा X? You got it? कानून Yes. है. Oh my god. अमिताभ बच्चन है ना इसमें तो. और अमिताभ बच्चन का नाम ये थोड़ी था, वो तो कोई श्रीवास्तव जी थे. ये अंधा कानून है. स्वैट को अंधा आंसर पता का- है. She's really. तुम देखी पिक्चर? नहीं, but the fact कि वो conductor. ओह, ये तो मैंने हिंट पे भूल ही गया था. Oh no. I think I know. Oh, sir, thank you. Oh, मैं ज़्यादा वो नहीं होता कॉन्फिडेंस, क्या पता गलत भी हो जाए. Is it रजनीकांत? You are right. ये अंधा कानून है. Nice people win. ये अंधा. She was being nice to you. by helping. I gave you Okay, direction. congratulations. Good. This is रजनीकांत. और अगर नहीं बनता तो मैं ये हिंट देने वाली थी कि one of his really popular movies का नाम is on his birth name, शिवाजी हाँ. बॉस. So, मोहित, रजनीकांत. ये अंधा And- कानून है. Good job, Mohit. ये अंधा कानून I have है. some special रजनीकांत memes to show you, जो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ. पहले मैं विनर को crown दे रही हूँ. ये अंधा Here is your कानून crown. है. And 45 under 45. 45 and 40 एकदम टक्कर के कंपटीशन. स्वैट, यू आर प्रॉब्ली लाइक एक चिल का क्वेश्चन अवे. Yeah. ओ हम दोनों ऐसे 40 under 40 तो हो ही गए. हाँ. स्वैट ताली मारी थी बात पे. Yes. And yeah, so this was the special Independence Day का quiz on famous personalities of India. Guys, मुझे बड़ा टाइम लगा ये बनाने में. एंड मतलब रात में वॉशरूम जाते समय, कुछ और रीड करते समय मुझे और भी नाम याद आ रहे थे. वो आर रियली ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया. आई नो आई मिस्ड अ लॉट ऑफ देम, बट मे बी आई कैन मेक अ पार्ट 2 और अ पार्ट 3 क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है. Oh, Yeah. let's do it. So, Yes. yeah, if you liked it, tell me. If you want me to do this, मेरी भी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी क्योंकि मेरी लिस्ट पड़ी हुई है. आई कैन मेक दिस क्वेश्चन. Yeah, tell me. And now, let's go to some Rajnikant memes. Yes, let's do it. Okay. Rajnikant once wrote a check, the bank bounced. ये विनत बात. हिला ना. When God is shocked, he exclaims, "Oh my Rajnikant." Happy Rajnikant to birthday. And last one is my attempt at saying that Rajni sir doesn't answer the quiz question. He is the quiz Quiz question. That's it, guys. This was the show. Don't forget to subscribe if you're watching till here, and see you in the next video. Okay. Yes. Bye. Happy Independence Day. Happy Independence Day. The video is ended, but India-related fun facts and trivia have not ended. Please do check the ebook out because it has a lot of yummy, as I call them, fun facts and trivia. So much to learn from that. Just for ₹47. Link is somewhere here and also in the pinned comment. So please do check it out. It will mean the world to us. And मैं नहाने जाती हूँ अब. हाँ. Okay, bye.